تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، نمرا مسجد آرڈوان روڈ سے براہ راست، اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سیری ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و برا سلام کچھ۔ بالکل ناظرین گرامی، اور آج الحمدللہ 26ویں سحری اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ تناول فرمائیں گے، یعنی کہ 26 کا روزہ، 26 نشست آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے۔ اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ہم گفتگو کرتے ہیں مہمانان سے، عالم دین سے، ثناخواں حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفا بریڈ، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریزیڈینسی، جبکہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیک گروپ، فیلڈ فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ تمام تر احباب کا بے شکریہ کہ آپ لوگ حیدرآباد نیوز کا اشتراک کیے ہوئے ہیں، حیدرآباد نیوز کی اس نشریات میں قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اب یہ دن بھی، یہ مہینہ بھی ہم سے الوداع کہہ رہا ہے، یہ دن بھی اختتام کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ ماہ رمضان آیا تھا اور جتنے پرتپاک انداز سے اس کا استقبال کیا تھا، ہم نے نشریات کا آغاز کیا تھا، اتنے ہی اداسی کے ساتھ، اتنے ہی بوجھل دل کے ساتھ ان نشریات کی، چونکہ اب یہ آخری نشستیں ہیں اور ان نشستوں کے بعد یہ ماہ سیام ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان میں رکھنے والے روزوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی سے نشریات کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ تو تلاوت کلام ربانی کے لیے جناب محمد علی نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب محمد علی نقشبندی صاحب نشریات کا آغاز کر چکے ہیں تلاوت کلام ربانی سے، اور میرے ساتھ جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، آج بھی ایسی ہی دو شخصیات، شہر حیدرآباد کی نامور شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ دونوں کا تعلق جو ہے وہ شوبز انڈسٹری سے ہے، سنگنگ کی دنیا سے ہے، اور بطور سنگر آپ شہر حیدرآباد میں اور ملک پاکستان میں اپنے شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دونوں بہت بڑے نام ہیں، دونوں بہت بڑے سٹارز ہیں، اور آپ یقینی طور پر انہیں جانتے بھی ہوں گے۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان جناب عابد رمضان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے شہر حیدرآباد کا فخر، ایک اور بڑا نام جناب احسن علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں
पसंद करते हैं, सवालात पूछते हैं, वो जवाबात देते हैं जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हसनान क़ादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अली आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ज़बरदस्त। जनाब अली नक्शबंदी साहब हम बढ़ेंगे नादत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, तो कौन से सनाख़ा हैं और क्या सुना रहे हैं जी? जी हाँ, आज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। जनाब मोहतरम मोहम्मद कासिम क़ादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाएँ। करम आज बाला है, बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। जनाब मोहतरम मोहम्मद कासिम क़ादी साहब जी बिस्मिल्लाह। हाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बूझेल गया, आका से उसने ये कहा, गर ओ नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बूझेल गया, आका से उसने ये कहा, गर ओ नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, आका का फरमान हुआ, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, बहन ने जब कुरान पढ़ा, बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है
सरवरदी का प्यारा गे दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा गे जुर्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर जुर्म हुए कितने उन पर जुर्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर फिर भी जुबां पर जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह सिबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से हमदो नात का नज़राना आप पेश फरमाते मोहम्मद कासिम कादरी साहब। जनाब बिल्कुल जनाब अली और आबिद रमज़ान साहब मौजूद, उनसे बात का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो आबिद भाई मुझे बताइएगा कि एज अ सिंगर माह रमज़ान की मसरूफियात कैसे मैनेज करते हैं? माह रमज़ान मुख्तलिफ होता है आम दिनों से? जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और एज ए सिंगर जो है वो रमज़ान मुबारक जो है बाबरकत महीना है। इस महीने को मैनेज करने की पहली चीज़ तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि म्यूज़िक बिल्कुल जो है वो ऑफ हो चुका होता है। इस महीने में इवेंट्स नहीं होते हैं और इस महीने में अल्लाह ने भरपूर इबादत का मौका दिया है। तो सिंगर्स हजरात जो म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो इस महीने, और इबादत में ही मसरूफियत रहती है। बाकी म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं इस महीने, और आफ्टर रमज़ान ईद से फिर इवेंट्स स्टार्ट हो चुके होते हैं। सही। तो माह रमज़ान में कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटीज़ जो आपकी रहती है म्यूज़िक से हट के, भाई क्योंकि वो तो बंद है तो चलो कोई और काम ही कर लें? माह रमज़ान में सबसे अच्छी जो एक्टिविटीज़ है वो सबसे पहली तो रोज़ा और नमाज, ये वो इबादत है कि आम दिनों में हम लोग इसको बाज़ दफ़ा अपने कामों की वजह से तर्क भी कर लेते हैं, कज़ा भी कर लेते हैं, लेकिन फोकस कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन माह रमज़ान में जो है वो पूरा फोकस इसी पे ही होता है। बाकी उसके अलावा अगर मौका मिलता है तो लाजमी सी बात है, फितरतन सिंगर है या वो किसी कोई म्यूज़िशन है तो वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता रहता है फारिग टाइम में। आफ्टर तरावी के बाद मौका मिलता है, साक रातों के अलावा तो मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत रियाजत रखनी पड़ती है, क्योंकि गला भी जो है वो रियाजत मांगता है, उसको करना पड़ता है लाजमी। अच्छा एहसन साहब, आप मुझे बताइएगा आपका माह रमज़ान किस तरह होता है? माशाल्लाह रमज़ान तो खैर सबसे ही अच्छा है, बाबरकत महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जिस तरह आप ने बताया कि इबादत में ज़्यादातर हम लोगों का टाइम देना, क्योंकि सारे हम लोग 11 महीने जो है वो शोज़ करते हैं, तो एक महीना हम लोगों को जो है इबादत के लिए जो है वो ख़ास तौर पे, वैसे तो खैर हो जाती है तर्क नमाज़ें वगैरह, लेकिन रमज़ानों में कुछ ज़्यादा है हम लोग जो है वो इस चीज़ को म्यूज़िक वगैरह को बिल्कुल नहीं करते। सही। वैसे एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि वो जो सिंगर्स होते हैं, जो शोबीज़ वाले जो अदाकार होते हैं वो दीन से बहुत दूर होते हैं, तो क्या ऐसा दुरुस्त है? नहीं ऐसी है, सोच के ऊपर है अपने अपने। इसका मैं अगर ऐसा बिल्कुल आप बात की अगर मैं कहूँ तो ये सोच बिल्कुल गलत है। और हमारे पाकिस्तान के ऐसे फनकार भी हैं जो कि म्यूज़िक के साथ साथ अपनी इबादत को भी उसी तरह अंजाम दिया करते थे जिस तरीके से उसका एक हक बनता है। और बहुत सारे नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है, लोग जो है उनकी सोच बिल्कुल ही गलत है कि म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड लोग जो है वो इबादत को तर्क कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमारा बिज़नेस है, हमारा काम है। और इबादत जो है वो अल्लाह की इंसान इसलिए करता है कि उसको दुनिया के साथ साथ आखिरत भी चाहिए। तो आखिरत के लिए तो लाजमी सी बात है तैयारी करनी है, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो या दीगर किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। सही है। आज़म साहब, गानों के साथ साथ क्या नाते वगैरह भी आप लोग पढ़ लेते हैं? मतलब भाई हाँ चलो सिंगर तो हैं, ये भी है। बिल्कुल, नात और मतलब जाहिर बात है कि ये तो दिल में है बिल्कुल, तो बिल्कुल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी वही सब कुछ है, गले से और सुर में, तो सब चीज़ें वही है। तो आज इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे भी ना। हाँ जी बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा अभी तो मुझे बताइएगा, शहर हैदराबाद में चूँकि हम देखते हैं कि ना ये जो फील्ड है ना, लाइक आप इसको अदाकारी कह लें, सिंगिंग कह लें, जो मल्टीपल जो शोबिज़
से ताल्लुक रखने फील्ड है, उसमें भी देखते हैं कि जो लोग आते हैं उन्हें आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल का सामना होता है। लाइक हैदराबाद में इस तरह का चूंकि एक ट्रेंड सेट है, भाई अगर आपने कामयाब होना तो कराची चले जाओ, कराची में बहुत स्पेस मिल जाएगा आपको, हैदराबाद में स्पेस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, हैदराबाद में स्पेस मिलता है लोगों को आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल, हैदराबाद में बहुत स्पेस है अगर इंसान के पास टैलेंट है तो, और टैलेंट होता है तो वो किसी भी शहर में हो नज़र आता है, दुनिया देखती है उसको। और हमारे हैदराबाद से ही ऐसे ऐसे फ़नकार हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में आज लेने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में स्पेस नहीं है, ये ज़रूर है कि इंडस्ट्री हमारे पास हैदराबाद में नहीं है, इंडस्ट्री कराची में है, लाहौर में है। अगर हैदराबाद में हमारे पास जो है इस वक्त कह ले इंडस्ट्री अगर हम किसी को कहें तो हमारे पास हैदराबाद न्यूज़ से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कोई दूसरा। तो हैदराबाद न्यूज़ जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, आर्टिस्टों को, नातखाओं को और बहुत सारे लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है उन्हें लेकर आता है। लेकिन हमारी दुआ है कि हैदराबाद में भी जो एक इंडस्ट्री हो जिससे कि हमारे जो फ़नकार हैं उनको मौका मिले आगे निकलने का। उनको स्ट्रगल करना पड़ता है दूसरे शहरों में जाकर, तो ये कि हम अपने शहर से ही रहकर स्ट्रगल करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। अच्छा मुझे बताइएगा आदिल साहब कि हैदराबाद में साल भर में कितने इवेंट्स आप लोग कर लेते हैं? अगर ओवरऑल बात करूं तो हम ये देखते हैं कि शहर हैदराबाद में ज़रा इवेंट्स थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे शहरों के। तो क्या लगता है शहर हैदराबाद में रह के काम किया जाए या नहीं यार वहाँ जाए? मैं आपको बताऊं कि इवेंट हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। सही, ये मैं आपको बताऊं। और साल के अंदर ऐसा है कि मुहर्रम हम लोग नहीं करते शोज़, रब्बिल अव्वल के तकरीबन 10-12 दिन तक हम लोग नहीं करते। तो मतलब ये जितने भी इस्लामी त्यौहार मतलब आते हैं तो उनमें हम लोग नहीं करते। लेकिन इसके अलावा महीने के तकरीबन 30 दिन अगर आप कहें तो 30 दिन में 40 शो हम लोग तकरीबन कर लेते हैं। अच्छा, हैदराबाद तो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम म्यूजिक का है। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि हैदराबाद में इवेंट्स हो रहे हैं और एक बड़ी कमाल बात 30 में 40 इवेंट अच्छा है और एक अच्छा बिजनेस भी है। बिल्कुल बिजनेस है और बिजनेस जो है वो ऐसे ही कि एज ए सिंगर हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो वो खैर हैदराबाद का एक बजट होता है इवेंट्स का, वो कंपनी हो, कंपनी के इवेंट्स हो या वेडिंग इवेंट्स हो, एक बजट होता है। लेकिन ये कि वैसा नहीं है जो कि हम बड़े शहरों में जाके परफॉर्म करके जो हमारी एक इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो हैदराबाद में नहीं है। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा होता है हैदराबाद में और हैदराबाद के जो आर्टिस्ट हैं वो खुश हैं क्योंकि हैदराबाद की आवाम जो है वो माशाल्लाह म्यूजिक लवर है। और जैसे कि एहसन ने कहा कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। उनको वेडिंग इवेंट अच्छा ही नहीं लगता कि अगर उसमें म्यूजिक ना हो। हाँ ये तो है, आजकल तो एक माहौल बन गया है जी। अच्छा ईद पर क्या मसरूफियत है जी बता दो? ईद पर जो है हमारी सबसे अच्छी मसरूफियत जो है वो मैं बताऊं कि हम लोग हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से एक कॉन्सर्ट हो रहा है अब्दुल्ला मॉल में और वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ा मज़ेदार इवेंट्स होगा, बड़ा अच्छा बैंड, सिंगर्स, कॉमेडियन हमारे साथ वहाँ मौजूद होंगे। तो देखते हैं ऑडियंस होगी, सब होंगे तो फिर मज़ा आएगा वहाँ परफॉर्म करने में। अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम बढ़ेंगे जनाबे हज़रत अल्लामा अरसलान काजी साहब की जानिब। तो क्या सवाल है? जी हाँ अल्लामा साहब, आज सवाल एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है नाज़रीन का। सवाल ये है कि शेख फ़ानी के लिए फ़िदिया का क्या हुक्म है? मेरा सवाल को समझा भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वो मैं समझ गया इनका इनकी मंशा का बता देता हूँ मैं। शेख फ़ानी कहते हैं उस शख्स को जो उम्र के इस हिस्से पे पहुँच चुका हो कि उसके लिए तबई तौर पर फ़िज़िकली अब रोज़ा रखना मुमकिन नहीं है, यानी 70 साल का या 80 साल का हो गया है। और अगर कोई शख्स उसको ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है कि वो अब सही नहीं हो सकता तो वो भी इसी हुक्म में आता है। तो अगर हाँ इसमें एक चीज़ बिल्कुल तवज्जो रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई शख्स है, गर्मी का मौसम था, रोज़े नहीं रख पा रहा लेकिन सर्दी में रखने पे कादिर है, तो वो शेख फ़ानी नहीं कहलाएगा। शेख फ़ानी वो होता है कि जो किसी भी हालत में रोज़ा रखने पर कुदरत नहीं रखता। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो अपने रोज़े का फ़िदिया दे सकता है। और फ़िदिया ये होगा तकरीबन 2 किलो के करीब जो है गंदम या उसका आटा, या अगर वो ये नहीं देना चाहता तो वो 2 मिस्किनों को पेट भर के खाना खिला दे एक रोज़े के बदले, तो वो ऐसा कर सकता है। तो शेख फ़ानी के लिए लाजिम है कि वो फ़िदिया अदा करे। अगर वो नहीं कर सकता तो उसके जो अहल अयाल है जिसके मातहत है वो ये जो है फ़िदिया अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और अब यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर
आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए करम है रमजान। करम है रमजान, करम है निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर, हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। कहते हैं आपका हैदराबाद न्यूज की खुसूसी रमजान नशरियात करम है रमजान में आप मुलाहिजा कर रहे हैं जी। निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से आज 26वीं सहरी अब से कुछ देर बाद हम तनावुल फरमाएंगे, यानी कि 26वीं नशिस्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं और गुफ्तगू जारी और सारी है। और यहाँ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे लिए लाजिम है कि हम ज़यान का जिक्र ज़रूर करें। ज़यान किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि ज़यान रेजिडेंसी जो है वो एक बहुत ही शानदार हाउसिंग सोसाइटी है जो कि टंडो फजल रोड पर कायम हो रही है। और मैं आपको बताऊं तो 80 और 120 जिसके बहुत अच्छे रिहाइशी और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो दे रहे हैं। और माह रमज़ान में एक अच्छी डिस्काउंट ऑफर जो वो दे रहे हैं वो ये है कि 80 गज के प्लॉट पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है जी, और 120 गज के प्लॉट पर 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट। तो एक अच्छा डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। कम कीमत हाउसिंग स्कीम है जी। तो वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कम आमदन वाले लोग, वो यहाँ पर चले जाएं और अच्छा आपको जो है वो काम यहाँ पे मतलब प्लॉट वगैरह मिल जाएंगे। अच्छी हाउसिंग स्कीम है। 80 गज का प्लॉट है जी, सिर्फ 5 लाख रुपए का। अच्छा 6 लाख का है वैसे, लेकिन 1 लाख रुपए डिस्काउंट हो गए ये 5 लाख रुपए का हो जाएगा। और 120 का कितने का है? ठीक है जी। तो 120 गज का प्लॉट जो है वो 9 लाख रुपए का है, लेकिन वो हो जाएगा 7.5 लाख रुपए का। तो ये ऑफर सिर्फ माह रमजान के लिए, चांद रात तक। तो कोई है मुखैर हज़रात जो देख रहे हो? हाँ भाई, जो मुखैर हज़रात देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मुझे मदरसे के लिए जगह की भी ज़रूरत है जहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। मदरसे लतीफ़ाबाद में 13 साल मदरसे को हो गए, 400 बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की, रस्म निज़ामी की, हिफ्ज़ नाज़ की तालीम हासिल करें। जो देखने वाले मुखैर हज़रात उनसे गुजारिश है कि ज़रूर ताउन करें। खादिम दीन का भला भी और आलिम दीन का भला भी। तो उसके अलावा जी हमारे पास जो है वो मामला ये है कि स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर। सोहेल मेमन साहब होते हैं जी, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है,
सोहेल मेमन साहब, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से नंबर ले लें, या ऐड के दौरान में नंबर चलेगा तो वहाँ से नंबर ले लीजिए और उनसे रब्ता कीजिए। एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में अपना घर बनाइए। और जहाँ बात हो रही है घर की, तो मैं चाहूँगा हम चलें और एक नात सुने हुजूर के दर की कोई। मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे कोई एक आध कलाम सुन लें, 2 अशार का। अच्छा जी, तो फिर आबिद भाई आप सुना रहे हैं? आबिद भाई या हमारे भाईजान एहसन भाई, माइक जनाब अली माइक अगर यहाँ तक पहुँचा देंगे अल्लामा अरसलान साहब, आप आबिद रमजान साहब सुना दें कलाम, फिर हम एक एहसन भाई सुन लेंगे जी। जनाब बन गई बात उनका करम हो गया, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई, अरे मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। जनाब आबिद रमजान साहब। अच्छा, मैं जो कलाम अभी पढ़ने जा रहा हूँ वो मनकबत कह लें उसको पंजतन पाक के। जी जी बिस्मिल्लाह सर। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं है, शेर खुदा नहीं है बेशक। कोई मुर्तज़ा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेर खुदा नहीं है। ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन और हसन से, हुसैन हसन से और, ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सीमा है। और काबिल गौर शेर है, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों के दरमियां, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों के दरमियां, ऐसी नमाज फिर हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद, कोई नबी नहीं है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के साथ मनकबत पंजतन पेश कर रहे थे जनाब आबिद रमज़ान साहब। और माशाल्लाह खुदा आपकी इस सलाहियत को मज़ीद बढ़ाए। और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मैं चाहूँगा हम अगला कलाम एहसन साहब से भी सुने और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत दुआ है क्योंकि रमज़ान के आयाम चल रहे हैं और इन आयाम में जो है दुआएं कबूल होती हैं। खूबसूरत सी दुआ आप लोग की नज़र करता हूँ। मेरे मौला करम करम हो करम, मेरे मौला करम हो
करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, वाह वाह वाह, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करेगा मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत प्यारे अंदाज से एहसन भाई ने हदिये दुआया कलाम पेश करा। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए। जनाब आबिद रमज़ान साहब, अल्लाह करीम आपको भी बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। बिल्कुल आमीन जी आमीन। और बहुत ही शानदार एक माहौल सा इन्होंने बना लिया है जी, ज़बरदस्त। आगे बढ़ेंगे ज़रा गुफ्तगू की जानिब और कुछ बातचीत करेंगे। तो आबिद साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगा, और चूँकि हम यहाँ पे इवेंट्स की बात भी कर रहे हैं, दीगर चीज़ों की बात भी कर रहे हैं, तो ज़रा शहर हैदराबाद की बात भी करते हैं। हम ये देखते हैं कि शहर हैदराबाद में जो है ना, वो एक मसाइल का अंबार भी हमें दिखाई देता है। बेशक। तो जिस तरह मुख्तलिफ शोबों के लोग, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हों, वो अदाकार हों, वो अपना अल्लाह भला करे समाजी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, वो लोग कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो एज अ सिंगर अपने शहर की बेहतरी के लिए या उसकी तरक्की के लिए आप लोग कई किरदार अदा करते हैं अपनी तरफ से? जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो अपना एक किरदार है, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जहाँ आपको मौका मिले, आपके पास अगर कोई स्टेज है जहाँ आपको लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वहाँ आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आप कोई ना कोई अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, जिसकी वजह से अवेयरनेस हो हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। और ज़रूरत इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा है अवेयरनेस की। सबसे मेन चीज़ हमारे हैदराबाद में मैं देखता हूँ कि हम जो हैदराबाद के लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अगर हम देखें हमारे गलियों में, मोहल्लों में, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब गाड़ी आएगी तो कब वो इस गंद को दूर करेगी, जबकि हम चाहें तो हम खुद से पहले उसको साफ करने की कोशिश करें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अपने ईमान को जाहिर करने का तरीका ये भी है, और मेरा मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो अपने घर के बाहर भी सफाई नहीं रखते, क्योंकि सफाई होगी तो हमारे बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। उसके अलावा दीगर मामलात हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक के बड़े इश्यूज़ हैं। हम लोग अगर किसी की तरफ इशारा करते हैं कि ये गलत है, तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम भी गलत हैं। जैसे कि हम अपने घरों के बाहर छोटी जगह होती है, हमें देखना होता है, लोगों का गुजर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जगहों को बढ़ा लेते हैं आगे। इसका जवाब हमें अल्लाह को भी देना है। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, यही ज़रूरी है, और इन चीज़ों से मसाइल कम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। ऐसा सा मैं देखता हूँ कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, देखिए वो हर एक को सपोर्ट करते हैं। लाइक हम ये देखते हैं कि तालीमी मैदान के अंदर भी हुकूमत कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जब सिंगर्स की बात आती है तो मैं देखता हूँ कि एज सच कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई मामला नहीं होते। तो इस पर क्या कहना है? इसका जवाब बड़ा जरूर साबित भाई देंगे आपको। और आबिद भाई की तरह जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ जो अभी मामला, अभी असल में जो है वो काफ़ी क्लासेस हुई हैं आर्टिस्टों की। ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं हो रहा, फनकारों के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फनकारों के लिए बहुत अच्छे जो है वो पैकेजेस भी होंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं था। अभी तक ये कह लें कि फनकार जो है वो बेचारा मजबूर है, वो अपनी मेहनत से खुद कमा रहा है और खुद खा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है अभी। वैसे ऐसा है कि कुछ लोग
जो मेहनत कर रहे हैं, जो फ्रंट पे हैं, वो लोग जो हैं उन तक कोई हेल्प नहीं आती। हेल्प लेने वाले वही हैं हमारे, उसी तरीके से ले जाते हैं जिनका कोई हक नहीं बनता है। मेरा मैसेज शायद जहाँ भी रहा होगा गवर्नमेंट तक। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि दिन में मजदूरी करते हैं और रात में वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए परफॉर्म करते हैं स्टेजेस पे, उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। तो ये है कि गवर्नमेंट अभी कुछ कर रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और ज़्यादा इस काम को तेज़ किया जाए ताकि हमारे फ़नकारों को कुछ रिलीफ मिले। जैसे कि अभी लास्ट सैलाब का दौर गुजरा था और हमने खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी काम किए, लेकिन मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि फ़नकारों की क्या हालत है हैदराबाद में, कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमसे अगर कोई राब्ता होगा, हमारी एक कौंसिल है, उस कौंसिल के ज़रिए हैदराबाद म्यूज़िक कौंसिल है, उसके ज़रिए हम तक कोई राब्ता होगा तो इंशाअल्लाह हम भी जो है वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें और हमारे हैदराबाद के फ़नकारों का हेल्प मिले। बिल्कुल ठीक हो गया जी, हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ मामला को बढ़ाए। अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं और मैं ज़रा गुफ्तगू करूँगा अल्लामा अरसलान साहब से। अल्लामा अरसलान साहब, आज 26वीं शब है, यानी कल 27वीं शब होगी, जिसको उमूमी तौर पर लैलतुल क़द्र कहा जाता है या माना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा मुझे बताएं कि लैलतुल क़द्र यानी कि 27वीं शब जो है उसकी फजीलत क्या है, और ज़रा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मुख्तसरन इस चीज़ को हम आज से अगर हाईलाइट करना शुरू करेंगे तो जो लोग आज देखेंगे वो कल तक अपना एक माइंड बनाएंगे भाई कल रात इबादत करनी है। देखें, तवातुर के साथ 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का इस बात पे इजमा है कि 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र होती है। तो इजमा उम्मत ताम्मा जहाँ हो जाए वहाँ लोगों को चाहिए कि उस अमल को मजबूती के साथ थाम के रखें। और कल 27वीं शब है, बहुत सी जगहों पे ख़त्म कुरान होगा, बल्कि अक्सर मसाजिद में ख़त्म कुरान कल ही होगा। तो जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ बरकतें होती है, जहाँ कुरान की तकमील हो तिलावत में वहाँ ज़्यादा बरकतें होंगी। और उसके साथ फिर एक जम्मे गफ़ीर मौजूद होगा, और रिवायत में आता है कि जहाँ 40 मुसलमान मौजूद हों दुआ करें तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा नेक शख्स होता है जिसकी दुआ के सदके अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। तो कल तो कई मस्जिदों में हज़ारों के मजमे होंगे, वरना 40 से ज़्यादा का मजमा तो होता ही है। तो फिर एक तो बाबरकत रमज़ान का महीना, फिर ताक रात, फिर कुरान करीम के नुज़ूल की रात, फिर मस्जिद के साथ जम्मे गफ़ीर, उसके बाद तकमील कुरान, इतनी सारी बाबरकत चीज़ों का जब एक साथ इज्तिमा होगा जब ये सब जमा होंगी एक जगह तो यकीनन इसके फ़ैज़ बरक़ात भी होंगे, दुआएँ भी कबूल होंगी। तो कल का दिन जो है वो इबादत करने का है। और ख़ुसूसन एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिए कि हमारे यहाँ एक चीज़ में सुस्ती की जाती है, वो ये है कि हम दुनिया वालों से तो बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, एक मांगने की आदत है कोई भी काम की चीज़, पैसे वगैरह, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजीब लकुम, यानी मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, हुज़ूर ने फरमाया कि बहुत सारी मुसीबतें आजमाइश ऐसी जो नाजिल हो चुकी हैं या नाजिल होंगी मगर दुआओं की वजह से टल जाती हैं। यानी आप जो दुआएं मांग रहे होते हैं आपको नहीं पता कि कौन कौन सी आजमाइश आपसे टल रही होती है खुद ही, तो अपने आप को दुआ का आदी बनाएं चलते फिरते। इसके लिए लाजिम नहीं है कि आप बाकायदा मुसल्ला बिछाएं, और रमज़ान का महीना है वैसे ही कबूलियत के औकात हैं, तो दुआ ख़ास करके कल के लिए ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आयशा ने हुज़ूर से पूछा कि अगर आप शब कदर को पा लें तो कौन सी दुआ करेंगे, तो उन्होंने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ मांगूंगा, यानी या अल्लाह तू करीम है, तूने माफ़ करने से मोहब्बत करता है, पसंद करता है माफ़ करने को, तो मुझे भी माफ़ फरमा दे। तो ये दुआ इसको लाजिमन अपनी ज़बान पर जारी रखें कल। और अब रमज़ान की वैसे आखिरी जो है वो अय्याम आ चुके हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि इन औकात में जो गलतियाँ खुदाए रमज़ान में हुई है उसका इजाला किया जाए, इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, अपने रिज़्क़ हलाल की बरकत की लाजमी दुआ करें। और ख़ास करके फ़लस्तीन के मुसलमानों के ताल्लुक़ से लाजमन दुआ करें कि मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि अगर उसके एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो बकिया जिस्म भी उसे महसूस करता है। यकीनन हमारे मुसलमान जो फ़लस्तीन के भाई बहन और बच्चे ये जितनी आजमाइश और परेशानी में इस वक्त हैं, तो हम सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, लेकिन जो है हम कम से कम वो तो करें क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और कल रात की जो खुसूसी दुआएँ हैं बाबरकत रात है, उसके अंदर फ़लस्तीन के मुसलमानों को लाजमन याद रखा जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जी, और ये ज़रूरी है कि उनकी दुआओं में याद रखा जाए। जनाब आबिद साहब, क्योंकि अब वक्त हमारा जो है वो तामीदानी बढ़ रहा है, तो हैदराबाद के लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? हैदराबाद के शहर के जितने भी लोग हैं मैं उन्हें सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारे यहाँ
जहनों में दिलों में इश्तियाल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इस ज़िंदगी में जब तक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, इसमें कोशिश करें कि आपसे आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार नाराज़ ना हो, हमेशा आपसे खुश रहें, आपका हुस्न सलूक उनसे बहुत अच्छा हो, आपकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारी ज़ुबान किसी के लिए तलवार जैसा गहरा ज़ख्म भी लगा सकती है। तो उनके लिए मेरा मैसेज। बिल्कुल ठीक हो गया। हैदर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल, हाफिज़ साहब ने सारी बात कह दी एक ही लाइन में, और वाकई ये बात सही कही है कि एहसास और बोलते वक्त किसी को ये सोचना चाहिए कि वो क्या है। हौसला तनकीद जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा था कर देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान को सोच को बड़ा करना चाहिए अपनी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम पढ़ेंगे कलाम की। जहाँ कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ अर्ज कर आप खास दिन है आज। जी हाँ बिल्कुल। अपना जो मुद्दा या जो भी बात मैं करना चाहता हूँ इस शहर के साथ, कि मेरे शहर की हवाओं में आज नमी है। मेरे शहर की हवाओं में आज नमी है। वकार आफ्ताब हैदराबाद गुरूब हो गया। आज मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान मुफ्ती अहमद मियां बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा भी था और आज आपकी तदफीन हो गई। आज आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी निगाहों से ओझल हो गए। तो हैदराबाद न्यूज़ ने उनके जनाजे की जो है नशरियात वो भी इसकी न्यूज़ भी आई थी, देखी थी, हज़ारों का मजमा था। और जो भी अहबाब हैं उनके अहले खाना, उन सब से हम ताज़ियत भी करते हैं, इस दुख में उनके साथ भी हैं। और ज़ाहिर है बहुत दुख है आज कि क़िबला मोहम्मद उलमा मुफ्ती अहमद मियां बरकाती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अब इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो खिदमात हैं, उनका मदरसा, उनकी तसानीफ़, उनके फतावा और ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी रहेंगे, उसका फैज़ मिलता रहेगा। तो देखने वालों से अब यही गुजारिश है कि जो हैदराबाद की मरकज़ी शख्सियात मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, ख़ास करके मज़हबी क़यादत, अब उनको नेमत उज़्मा समझते हुए उनका ख्याल करें, उसकी कदर करें। इसलिए कि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारे यहाँ जाने के बाद कदर की जाती है। वो मैं आज पढ़ रहा था कि अपना एहतराम बढ़ाने के लिए यहाँ मरना पड़ता है। तो ज़िंदगी में लोग उनके पास आते थे जाते थे, लेकिन आज जो जब मैं गफ़ीर मैंने जनाजे में देखा धाड़े मारते लोग, जी हाँ हज़ारों का मजमा था। बहरहाल आज मेरे लिए जो है वो दुख की कैफियत भी है। और ये रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, इसमें मैं कल परसों भी कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा एक अजीब सा मतलब महसूस हुआ कि रमज़ान देखें बरकतें कैसे समेटता ना। कुरान करीम में जो मिराज का वाक़या पढ़ते हैं, तो उसमें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए, तो फरमाता है बारकना हौलाहु, उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तो बरकतें क्या हैं, उसकी तफसीर आप पढ़ें। तो बरकतें वो अम्बिया की कब्रें हैं वहाँ पे, यानी अल्लाह ने अपने नेक बंदों की कब्रों को या उनके वजूद को भी बरकत का है। तकरीबन आप समझिए 24वें रमज़ान को मुफ्ती अहमद बरकाती साहब रहमतुल्लाह अलैह इनका विसाल हुआ। 25वें रमज़ान को गज़ाली ज़मालमा सैयद अहमद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका विसाल हुआ था। 28वें रमज़ान को मुफ्ती खलील कादी साहब उनका विसाल हुआ। 17 रमज़ान को कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद साहब का विसाल हुआ। तो आप देखिए कि बड़ी मरकज़ी शख्सियात जो है वो इसी महीने में, इस बाबरकत महीने में ही अल्लाह ने उठाई हैं। और उनका वजूद जब जिंदा थे तो बाबरकत था, और कब्रों में जाने के बाद तो अल्लाह ने वैसे फरमा दी बाबरकत है। तो अब ये कि ज़िंदगी में जो फैज़ उठा सके उठाया, बाद इंतकाल भी इंशाअल्लाह फैज़ उठाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं एक ऐलान आपको बताता चलूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। तमाम सामीन व हाज़रीन से गुजारिश है कि 26 रमज़ान बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद अक्सा लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में मोहम्मद उलमा मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान मुफ्ती अहमद मियां बरकाती अलैहि रहमा की फातिहा सोया में तमाम अहबाब शिरकत फरमा के सवाब दारिन हासिल करें। और जितने भी देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि मुफ्ती आज़म सिंध बलोचिस्तान के लिए आपने दुआए मग़फ़िरत भी करनी है, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करनी है। जनाब अलविदा सुनेंगे तो सुभान अल्लाह, अलविदा। बिल्कुल, आज मैं तो चाहता हूँ कि जो बैठे हैं हमारे मेहमान आज सब मिलके इंशाअल्लाह सना खां शुरू करें, सना खां, और फिर हम जो है वो आगे बढ़ा लेंगे। आशिक है अब पारा पारा, फुरकते हिजरो फुरकत ने मारा, अलबदा
माह रमज़ान अलवदा अलवदा माह रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज्बा, हो गया कम नमाजों का जज्बा अलवदा अलवदा माह रमज़ान। बज़्म-ए इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। बज़्म-ए इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना अलवदा अलवदा माह रमज़ान अलवदा अलवदा माह रमज़ान अलवदा अलवदा माह रमज़ान। साल आइंदा शाहे हरम तुम करना अत्तार पर ये करम तुम। साल आइंदा शाहे हरम तुम करना अत्तार पर ये करम तुम। तुम मदीने में रमज़ान दिखाना मेरे आका, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना हम सबको, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना मेरे आका, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना हम सबको, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलवदा अलवदा माह रमज़ान। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। और बहुत ही प्यारे अंदाज से तमाम अहबाब ने मिलकर अंसब कुरैशी भाई ने, हमारे आबिद रमज़ान भाई, जनाब मोहतरम साईं एहसन साहब और अल्लामा मोहम्मद रसलान साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद कासिम कादिर साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज से अलविदाई सलाम पढ़ा, अलविदा अलवदा माह रमज़ान पढ़ा। अल्लाह करीम आइंदा साल रमज़ान करीम हम सबको मक्के और मदीने में देखना नसीब फरमाए। और जिन अहबाब ने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ताउन किया, आज बड़ी रात है, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। और जितनी पूरी टीम हमारे साथ काम कर रही है हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह करीम सबको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। और एक तवील दुआ देना चाहूँगा, अल्लाह करीम इन तमाम के इल्म में, अमल में, उम्र में, इज़्ज़त में, आबरू में, रोज़ी में, हया में, शर्म में अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। और जितने देखने वाले, जितने अहबाब ने पसंद फरमाया, अल्लाह सबको आबाद-ओ-शाद फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत हाजी सैयद मोहम्मद हनीफ शाह साहब, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और दुआ गो हूँ अल्लाह करीम जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के अल्लाह करीम रोज़ी में बरकत अता फरमाए। बिलख़ुसूस जनाब मोहतरम मुख्तियार अहमद राजपूत साहब, मंसूर अहमद राजपूत साहब, जो कि उनकी पूरी फैमिली हमारी ट्रांसमिशन बड़े अच्छे अंदाज से देखती है और कमेंट्स वगैरह भी वो लोग करते हैं और बहुत प्यारे अंदाज से हैदराबाद न्यूज़ को सराहते हैं। अल्लाह उनको आबाद-ओ-शाद फरमाए। आमीन आमीन। जनाब अली बहुत शुक्रिया, आबिद साहब आपका, हसन साहब आपका, अल्लामा अतलान साहब आपका, सर आपका, मोहम्मद नशबती साहब आपका और तमाम तर देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह कल रात 1 बजे 1 बजे पर फिर आपसे होगी मुलाकात। करम है रमज़ान में। इसी के साथ मेज़बान अंसब कुरैशी और मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाज़त। मैं गुज़ारिश करूँगा जनाब अल्लामा अतलान साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि।
یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم جو غلطی کوتاہی قصداً صاحباً عمداً ہوئی اسے معاف فرما. جن احباب میں تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب خوب برکت عطا فرما. مولا کریم ہمارے محترم مکرم عادل صدیقی بھائی کے والد ایمان صدیقی اور بھائی اصفر صدیقی کی مغفرت فرما. جاوید بابا مرحوم، رفیق الزما مرحوم، جاوید اقبال بھائی کی والدہ، عزیر بھائی کے والد مرحوم، زہیب بھائی کے والدین اور زہیب بھائی کے سسر عابد میاں دہلوی مرحوم، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم خصوصاً بالخصوص مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. مولا کریم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پہ اجر جزیل عطا فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب مسلمان دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.